everyone. In last video I taught about you about Rh incompatibility, right? Or which is also called as erythroblastosis fetalis, or it can be called as the hemolytic disease of newborn. And now we will start with coagulation of blood, right? So everyone knows that our body is responsible for maintaining homeostasis. What is the meaning of homeostasis? Homeostasis means that every condition in our body is regulated, right? Every condition in our body is regulated. That maintenance of a constant body condition is what is known as homeostasis. So what is the meaning of homeo? Homeo means same and stasis means रुका हुआ, right? So maintaining a constant internal environment in our body is called as homeostasis. हमारा body homeostasis कैसे maintain करता है? आप अगर मान लेते हैं कि काफ़ी गर्मी के दिन है, ठीक है? Now even if you are sitting in 38 degrees Celsius and if you are healthy, right, if you are not diseased at that time, your body temperature will be near 37 degrees Celsius, right? लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर आप अभी मान लेते ठंड का दिन है, राइट, इवन इफ यू वेंट टू मनाली एंड यू आर एंजॉइंग इन द स्नो at 0 degrees Celsius also, then also if you are not having any disease, your body temperature will be 37 degrees Celsius, right? So what does this mean? That when a human is non-diseased, that particular human's body regulates its internal environment, which is called as homeostasis. Just like temperature, our body pH is also maintained, right? Amount of blood which flows in our body is also maintained, blood pressure is maintained, heart rate is maintained, everything is maintained. You know, right, what is the normal heart rate of your that is 72 beats per minute. So 72 is like an average. So जो भी होता है ये इसी range में होता है. जब whenever this range gets deranged, right, whenever the values go beyond these levels, beyond this range, that leads to a disease, that is problematic, right? So I hope आपको ये समझ आया. So what is the role of clotting? Clotting of blood is actually the stasis of blood. Whenever there is an injury, what will happen? Blood will start to ooze out through your body, Now because of this, the level of blood in your body will start getting less. So this is a body's mechanism of maintaining homeostasis. And what homeostasis is your body maintaining right now? That is the amount or volume of blood, right? So clotting is a mechanism to protect this homeostasis in your body. And what is that homeostasis? That is volume of blood in your body, right? So what is clotting? Clotting is stasis of flow of blood, right? Clotting is stasis of flow of blood. ठीक है? So now why does this happen? First thing, so आपका NCERT कहता है why does clotting happen? It is because generally of an injury, ठीक है? कहीं पे भी अगर बॉडी में इंजरी होगा तो क्या होगा? दैट विल लीड टू breaking of blood vessel wall, and because of breaking of blood vessel wall, the blood will ooze out through the blood vessels, right? So to compensate that, to close that blood vessel, clotting happens so that no more blood flows out through your system, right? So injury is what triggers your clotting mechanism. Injury is what mainly triggers your clotting mechanism. इसके अलावा आपका कुछ internal mechanism से भी आपका blood start हो सकता है. But generally you have to remember that in a response to injury only clotting happens. अगर इंजरी के अलावा किसी रीज़न से हो गया, that is a disease, that will become a disease. कि आपको चोट ही नहीं लगी और आपके बॉडी के अंदर ऐसे ही ब्लड जमना स्टार्ट हो गया, ब्लड कोआगुलेट करना स्टार्ट हो गया, what will happen? आपका ब्लड फ्लो हैम्पर होगा and you will suffer from a disease, right? So I hope यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. So internally भी कुछ रीज़न से कुछ डिजीजेस में ऐसे स्टार्ट क्लॉटिंग हो सकता है. So this is how clotting is initiated. Now there are two things which you have to understand. आप बोलेगा मैम प्लेटलेट्स का रोल कहाँ आता है? There is something which is called as primary platelet plug. ठीक है, प्लेटलेट कहाँ काम आता है और आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ आता है काम. Now see,
in the first video itself I told you about fibrinogen, right? मैंने बताया blood में एक protein होता है which is a clotting factor which is called as fibrinogen. So there are 13 clotting factors in your blood, right? How many clotting factors are there in your blood? There are 13 clotting factors in your blood and you do not need to remember the names of those factors as of now. ठीक है, इस लेवल पे, नीट के लेवल पे आपको नहीं पूछता, फिर भी किसी को बहुत मन हो आप इंटरनेट में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स का नाम खोज के याद कर सकते हैं, बट वो नहीं आता है. ठीक है, सो नाउ देयर इज, अब बचपन से ये भी पढ़ते आ रहे कि मैम प्लेटलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. सो वेयर इज द रोल ऑफ प्लेटलेट एंड वेयर आर द रोल ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स. नाउ रिमेंबर व्हाट हैपेंस इज डे टू डे में जब आप नॉर्मली भी हैं, बहुत जगह पे आपके ब्लड वेसल्स में कई बार इंजरी होती है, मतलब माइन्यूट इंजरीज है ना, मतलब मिलियंस ऑफ टाइम्स होते ही रहती है. ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड में ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है तो कहीं पे भी नॉर्मली भी इंजरी नहीं होता है. नॉर्मली भी आपका क्या होता है कि इंजरी होते रहती है एंड दैट इज जो स्मॉल आपका जो ब्रेकेज हो जाता है आपका ब्लड वेसल्स में, दैट इज व्हाट इज सील्ड बाय प्लेटलेट्स. ठीक है, ये प्लेटलेट से सील हो जाता है. अगर कोई बहुत छोटा आपका ब्रेकेज है ब्लड वेसल्स में, दैट इज सील्ड बाय प्लेटलेट्स. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. ठीक है, ये क्या हुआ, मान लेते हैं यहाँ इंजरी हुई, प्लेटलेट यहाँ पे आएगा, एग्रीगेट करके इस छेद को ऐसे करके भर देगा. दिस इज व्हाट इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. बट व्हाट विल हैपन इफ दिस this hole is bigger, if this breakage is bigger, so what will happen, now platelet will try to come here, है ना, and it will try to close this wall, but it will not be able to happen, है ना, it will not be able to do so. Why? Because the blood flowing through here, this will again and again remove this platelet plug, because this this break in the wall is very big. ठीक है, सो अब इसके चलते क्या होगा, नाउ द प्लेटलेट प्लग इज नॉट सफिशिएंट, नाउ द प्लेटलेट प्लग इज नॉट सफिशिएंट टू क्लोज दिस ब्रेक इन द वॉल, टू क्लोज दिस ब्रीच इन द वॉल. सो नाउ द रोल कम्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. ठीक है, अब क्लॉटिंग फैक्टर्स आपका काम आता है. सो याद रखना, नॉर्मली कहीं पे भी आपको इंजरी हो, पहले वहाँ जाकर के प्लेटलेट उस इंजरी को, आपका ब्रेक को सील करने की कोशिश करता है. व्हेन द इंजरी इज बिग, व्हेन द ब्रेक इन योर ब्लड वेसल्स इज बिग, this platelet plug is not able to completely close it. It is again and again removed by the flow of blood. Now the role comes of clotting factors, right? Now the clotting factors will come and it will try to breach this break, right? इसको फिर ये सील करने की कोशिश करेगा. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी हाउ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स हेल्प अस. ठीक है, चलिए. सो क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन होता है. व्हाट डिड आई से, क्लॉटिंग मैकेनिज्म जब भी आपका ब्लड में क्लॉट बनता है, इट इज अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन. It is a cascade of reaction, right? Now what do you mean by cascade? Cascade हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रिएक्शन होता जाता है. ठीक है, पहले कुछ से कुछ बना, फिर उसका जो एक्टिवेटेड प्रोडक्ट होगा वो फिर कुछ और बनाएगा, फिर उसका जो एक्टिवेटेड प्रोडक्ट होगा वो फिर कुछ और बनाएगा, फिर उसका जो एक्टिवेटेड प्रोडक्ट होगा वो फिर कुछ और बनाएगा, एंड फाइनली ऐसे करते करते आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा जो कि आपका जाके काम करेगा. नाउ यू विल आस्क, मैम इतना क्या है, एक ही बार में बना देते, राइट? इतना सारा स्टेप्स क्यों? वाई कैस्केड? सो बिकॉज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज वेरी सेंसिटिव थिंग टू हैपन. आपको चोट लगी तो क्लॉटिंग इज वेरी नेसेसरी. चोट लगी और खून बहना बंद नहीं हुआ, व्हाट विल हैपन? यू विल डाई, राइट? यू नीड टू मेंटेन दैट होम्योस्टैसिस, यू नीड टू मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन योर बॉडी. बट आप सोच लीजिए कि अगर ये क्लॉटिंग इतनी आसानी से आपके बॉडी में कहीं भी स्टार्ट हो गया, इतनी सी इंजरी हुई कि नहीं, इंजरी भी नहीं हुआ और क्लॉटिंग स्टार्ट हो गया, व्हाट विल हैपन? द pathway of blood which in your body will start getting blocked because of this clot formation. So this is also very dangerous at times, right? अगर ये बिना इंजरी के ट्रिगर हो रहा है और ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है, this is very dangerous for your body because आपका ब्लड फ्लो को ही ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, और ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो क्या हुआ? ऑक्सीजन विल नॉट, ब्लड जहाँ फ्लो नहीं कर रहा है वहाँ ऑक्सीजन विल नॉट रीच इन योर बॉडी, राइट? सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट? This is very dangerous. So to prevent this, there is a cascade of reaction कि पहले इंजरी हुई, फिर एक से दूसरा प्रोडक्ट बना, दूसरे से तीसरा बना, तीसरे से चौथा बना, so that this reaction is very regulated. When it is happening only and when it is required. It is happening in a very controlled manner. राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज दिस कैस्केड ऑफ रिएक्शन. आई होप आपको कैस्केड का मतलब समझ में आया हो, राइट? सो आपको पूरा पाथवे तो नहीं देखना है, आपको थोड़ा सा देखना है ना. जब भी याद रखना, जो इंजरी से जो आपका
इंजरी की वजह से जो आपका ट्रिगर होता है, दिस पाथवे इज बाय एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ क्लॉटिंग, ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। आपको इतना ही याद रखना है, बस नाम याद रखना है। एक्सट्रिंसिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज बाहर से चोट लगी, इसके वजह से आपका ब्लड क्लॉट करना स्टार्ट किया। और इंट्रिंसिक कब बोलेंगे, है ना, जब इंटरनल अगर कुछ चीज़ के वजह से आपका ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाए, तब मैं उसको क्या बोलूँगी, तब मैं उसको इंट्रिंसिक बोलूँगी, ठीक है। आपको बस ये दो पाथवे याद रखना है। अब इन दोनों का पाथवे अलग अलग होता है, देयर आर वेरियस स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दोज, ठीक है, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दोज। आप फर्स्ट ईयर MBBS में आइएगा तो आप पढ़िएगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी कि आपका NCERT शॉर्ट में क्लॉटिंग के लिए क्या बताता है। आपका NCERT कहता है कि फर्स्ट फॉर क्लॉटिंग देयर इज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ठीक है। व्हाट इज प्रोथ्रोम्बिन? नाउ यहाँ पे जो NCERT में मेंशन किया है बच्चे आपका, यू नीड टू रिमेंबर दोज क्लॉटिंग फैक्टर्स, राइट, यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दोज क्लॉटिंग फैक्टर्स। और तीन ही मेंशन किया है, एक फैक्टर 1, फैक्टर 2 एंड फैक्टर 4, राइट, आपको यही याद रखना है। सो आपका NCERT कहता है कि आपके ब्लड में, मैंने अभी क्या बताया, मैंने आपको बताया दैट इन योर ब्लड ऑलरेडी 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट, राइट, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन योर ब्लड, बट दीज आर इन एक्टिव फॉर्म। आप पूछेंगे मैम ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट होता है तो हमेशा क्लॉट क्यों नहीं करता ब्लड को? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। दीज यू नो बाय दिस कैस्केड ऑफ रिएक्शंस दीज प्रोडक्ट्स दे आर एक्टिवेटेड एंड व्हेन दे गेट एक्टिवेटेड दे स्टार्ट फॉर्मिंग द क्लॉट, राइट। सो पहला जो इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट है दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, है ना। आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप ना डाइजेस्टिव सिस्टम भी आप पढ़कर आए होंगे। अगर पढ़कर आए होंगे तो आपको पता होगा कहीं पे भी प्रो लग जाता है या फिर वर्ड के एंड पे जेन लग जाता है, दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट इज इनएक्टिव, है ना। ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे कि जब भी एंजाइम्स रिलीज होता है दे आर जनरली रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म, जब उनकी ज़रूरत होती है तब उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो नाउ दिस प्रोथ्रोम्बिन इज अ फैक्टर विच इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है, विच इज कन्वर्टेड और एक्टिवेटेड इनटू थ्रोम्बिन। सो दिस इज इनएक्टिव, है ना, एंड दिस इज एक्टिव। रुको दूसरे कलर से लिख देते हैं, दिस इज इनएक्टिव, है ना, लिख नहीं रहे, समझ जाओ, दिस इज इनएक्टिव एंड थ्रोम्बिन इज एक्टिव, राइट। अब ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन क्यों बना? बिकॉज ऑफ अ प्रोडक्ट विच, बिकॉज ऑफ एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ऑफ एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ से आया? सो नाउ दिस थ्रोम्बोकाइनेज इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कैस्केड ऑफ रिएक्शंस विच हैपेंड, right, this thrombokinase is formed because of the cascade of reactions which happened, है ना। ढेर सारा क्लॉटिंग फैक्टर्स आपका आया रोल प्ले में और फाइनली क्या करके बनाया? थ्रोम्बोकाइनेज बनाया। ये यहाँ तक बहुत सारे स्टेप्स ऑफ रिएक्शन होता है, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो आप समझिए कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना विच इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोकाइनेज। दिस थ्रोम्बोकाइनेज विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, राइट, एंड प्रोथ्रोम्बिन इज विच क्लॉटिंग फैक्टर? प्रोथ्रोम्बिन इज फैक्टर नंबर 2, प्रोथ्रोम्बिन इज फैक्टर नंबर 2, राइट। इसके अलावा हर स्टेप में आपको कैल्शियम आयन बहुत जरूरी होता है, याद रखना, कैल्शियम आयन इज वेरी 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 नेसेसरी फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। सो कैल्शियम आयन भी आपका एक फैक्टर होता है, दैट इज फैक्टर 4, ठीक है। सो अभी तक हमने कौन कौन से फैक्टर के बारे में पढ़ा? फैक्टर 2 दैट इज प्रोथ्रोम्बिन एंड फैक्टर 4 दैट इज कैल्शियम, राइट। नाउ व्हेन दिस थ्रोम्बिन गेट्स एक्टिवेटेड, आपका एक और प्रोटीन होता है या क्लॉटिंग फैक्टर होता है ब्लड में, जिस कॉल्ड एज फिब्रिनोजन। इसके बारे में तो हमने स्टार्टिंग में ही ब्लड में देखा, राइट। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन, दिस इनएक्टिव फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फिब्रिन, राइट, दिस इनएक्टिव फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव फिब्रिन। अब वहाँ पे जहाँ पे हमने ब्लड लिखा, आप वहीं जाके बच्चे मेंशन कर लीजिए दैट फिब्रिनोजन इज फैक्टर नंबर 1, फिब्रिनोजन इज फैक्टर नंबर 1, ठीक है। सो 3 फैक्टर के बारे में आपको याद रखना है। कहीं पे भी प्रोथ्रोम्बिन के जगह पे आपको फैक्टर 2 लिख दे तो आपको समझ जाना इट इज टॉकिंग अबाउट प्रोथ्रोम्बिन, राइट। सो नाउ दिस फिब्रिनोजन विच वाज इनएक्टिव इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, राइट। फाइब्रिन क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइब्रिन इज लाइक फाइबर्स, राइट। व्हाट विल, जैसे ही ये फाइब्रिन आपका एक्टिवेट होता है, ये क्या करता है? दिस फाइब्रिन, दिस इज लाइक फाइबर, right, it will go and it will cross link, various fibrin fibers will cross link with each other like this, है ना, ऐसे करके एकदम क्रॉस लिंक करेगा and what it will do, this fibrin will form cross link fibrin, it will be like a meshwork, meshwork समझते हैं? जाली,
इट विल बी लाइक अ मेश वर्क, और जब ये ऐसा मेश वर्क बनाएगा तो क्या होगा, जितना भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ब्लड में, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म्ड एलिमेंट्स बच्चे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब कि आपका जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स है, ऑल ऑफ देम विल स्टार्ट गेटिंग ट्रैप्ड इन दिस मेश वर्क, है ना। क्या होगा, सारा का सारा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसमें आपका फंसने लग जाएगा इस जाली में, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी blood will not be able to now flow out, and this is your clot. This is what is your clot, है ना। So आपसे कोई पूछे what is a clot made up of, so clot is made up of cross-linked fibrils which has trapped various RBCs, WBCs and platelets, and this is the clot formation. तो जो आपको यहाँ पे ना चोट लग जाते हैं तो कैसे रेड सा आपका कड़ा सा चीज़ बन जाता है विच स्टॉप्स द ब्लीडिंग, दैट इज व्हाट इज योर क्लॉट. एंड हाउ इज दैट क्लॉट फॉर्म? बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंक फिब्रिन, है ना, विच हैज ट्रैप्ड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो आपको जानना है. आई होप आपको समझ में आया. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, राइट. Now look into this. अब आपके ब्लड में मैंने आपको बोला वी आर स्टडिंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट. वी आर स्टडिंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया दैट ब्लड इज योर मेन tissue which transports substances across your body. इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था that lymph is also a tissue. Lymph is actually not a tissue, right? Lymph is also responsible for transportation of various substances across your body. ठीक है. So आपके बॉडी में सर्कुलेशन के लिए दो सिस्टम प्रेजेंट होता है ना. बचपन से हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम एक पढ़ते आ रहे हैं, आपके लिए दो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एक तो आपका मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज योर मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है. एंड एक और होता है विच इज कॉल्ड एज लिम्फैटिक सिस्टम. लिम्फैटिक सिस्टम, है ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, आपका ब्लड फ्लो करता है. एंड लिम्फैटिक सिस्टम में आपका लिम्फ फ्लो करता है. लिम्फ फ्लो करता है. नाउ यू विल आस्क मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. तो उसके लिए थोड़ा मेरे को आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के डिटेल में जाना होगा. ध्यान से आप समझना, ठीक है. चलिए. सो मान लेते हैं दिस इज माई आर्टरी, राइट. दिस इज माई आर्टरी. नाउ दिस आर्टरी, दिस इट्स वॉल इज वेरी थिक, राइट. इट्स वॉल इज वेरी थिक. नाउ सिंस इट्स वॉल इज वेरी थिक, है ना, जो लोग भी में से रेस्पिरेशन पढ़े दे मस्ट नो अबाउट दिस, है ना, कि सिंस आर्टरी का वॉल इतना थिक होता है तो यहाँ से कोई भी एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल, राइट. एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल. सो बिकॉज यहाँ से एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, व्हाट विल हैपन? दिस आर्टरी विल डिवाइड इनटू वेरियस स्मॉलर आर्टेरियोल्स, है ना. फिर आर्टेरियोल से भी स्मॉल क्या बनाएगा? दिस विल फॉर्म अ कैपिलरी नेटवर्क, राइट. दिस विल फॉर्म अ कैपिलरी नेटवर्क. तो जो लोग भी बच्चे में से पढ़े दे विल नो व्हाट इज अ कैपिलरी. व्हाट इज अ कैपिलरी? कैपिलरी आर वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स. कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स विच हैव अ वेरी थिन वॉल विच परमिट्स एक्सचेंज, है ना. कोई किसी भी चीज का एक्सचेंज वो परमिट करता है, ठीक है. सो दिस कैपिलरी वॉल सिंस दिस इज वेरी थिन, व्हाट विल हैपन? ये जो ब्लड है यहाँ पे, आपका यहाँ पे ब्लड है, ठीक है. दिस इज फिल्ड विथ ब्लड. नाउ व्हाट विल हैपन कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो आपका बच्चे काफ़ी बड़ा होता है ना. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, दीज आर बिग. सो व्हाट हैपन्स इज दे कैन नॉट पास थ्रू दिस कैपिलरीज, बट प्लाज्मा ऑफ दिस plasma of the blood, that is water, right. And since the wall of capillary is very thin and there are various pores in between the cells of these capillaries, what happens is some of the plasma leaks out, right. Some of the plasma leaks out through this capillaries, and you know that we are having a closed circulatory system. अभी मैं इसके आगे में डिस्कस करूँगी closed circulatory system के बारे में. What is the meaning of a closed circulatory system? Closed circulatory system means a system of a system in which blood or your circulating fluid is flowing through closed vessels. सारा का सारा closed vessels से होता है. blood कभी भी आपका टिश्यू के साथ मिक्स नहीं होता है ना. you must know कि आपका है ना कैपिलरीज है तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स भी होंगे. इन सेल्स को मान लेते हैं ऑक्सीजन पहुँचाना है तो, बट दीज सेल्स दीज नेवर कम इन कॉन्टैक्ट विथ ब्लड, राइट. कभी भी नेचुरली नहीं आते. चोट लग के इंजरी हो गई तो अलग बात है कि ब्लड निकल जाएगा, बट जनरली अगर सब चीज़ ठीक है तो दीज सेल्स दीज नेवर कम इन कॉन्टैक्ट विथ ब्लड. ब्लड इज फ्लोइंग
फ्लोइंग थ्रू क्लोज्ड पाइप्स के जैसा आप समझ लीजिए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. सो व्हाट हैपेंस इज, ये सेल्स तो आपका नीचे बाहर नहीं निकल सकता है कैपिलरी से, बट प्लाज्मा कैन लीक आउट, एंड बिकॉज दिस प्लाज्मा लीक्स आउट, है ना, आपका प्लाज्मा का प्रेशर है, कुछ फ्लो कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, तो ये पानी कुछ प्रेशर लेके आया पाइप में. कैसे, अगर आप एक मोटर लगा दे तो पाइप में कैसे प्रेशर रहता है, कहीं पे भी लीकेज अगर हो, उसमें छेद हो तो क्या होता है, वहाँ से पानी निकलता है. जस्ट लाइक दैट कैपिलरीज में माइन्यूट पोर्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ फ्लोइंग ब्लड, दैट यू हैव गॉट अ ब्लड pressure, right? So because of that, what happens is plasma leaks out through these capillaries, right? Plasma leaks out through these capillaries, and when this plasma leaks out through these capillaries, this plasma gets deposited in your tissues or around your cells. This plasma gets deposited around your cells, and when this gets deposited around your cells, now this is not called as plasma. Why? Because plasma is something which is found in blood. Now this is called as lymph. समझ में आया लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज नथिंग बट प्लाज्मा, उसका अनदर नाम है. जब ब्लड में रहेगा लिक्विड कंपोनेंट तब प्लाज्मा बोलेंगे. जब ब्लड कैपिलरी से, ब्लड से निकल के अलग होके आपके टिश्यूज में जमा हो जाए तब हम उसको क्या बुलाएंगे? तब वी विल कॉल इट एज लिम्फ, राइट? बिकॉज ऑफ दिस आपका एनसीईआरटी लिम्फ को आपका टिश्यू फ्लूइड भी कहता है ना, टिश्यू फ्लूइड भी कहता है, टिश्यू फ्लूइड भी कहता है, बिकॉज दिस फ्लूइड, दिस लिम्फ इज फाउंड इन योर टिश्यूज, राइट? एंड इसके अलावा बच्चे ये भी याद रखना दैट दिस कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है ना. वाई एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड? एक्स्ट्रा सेल्यूलर बिकॉज ये जो सेल्स है आपका इसके बाहर में है, राइट? सो दिस फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर. आई होप आपको लिम्फ का मतलब समझ में आया. सो हाउ इज लिम्फ फॉर्म्ड, अगर आपसे कोई पूछेगा सो आप बोलेगा मैम लिम्फ इज फॉर्म्ड व्हेनेवर प्लाज्मा लीक्स आउट थ्रू द ब्लड कैपिलरीज एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन द टिश्यू. ठीक है, अब आप सोचिए दिस पोजेस अ प्रॉब्लम, राइट? क्या प्रॉब्लम पोज करता है कि अगर ऐसे ही मेरा पता चला ब्लड से प्लाज्मा निकलते जा रहे हैं तो क्या होगा, मेरा ब्लड का तो वॉल्यूम घटने लग जाएगा, राइट? दिस विल बी प्रॉब्लमेटिक. और मेरे पता चला ना टिश्यूज में केवल ब्लड ही, मतलब प्लाज्मा ही भरता जा रहा है ना, फूलते ही जा रहा है इंसान. सो व्हाट नेचर क्या बोला कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे लिम्फ लीक कर रहा है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल form another system. We will form another system which will be now called as lymphatic system. ये क्या करेगा, ये जो टिश्यूज हैं बच्चे, है ना, ये जो टिश्यूज से आपका लीक हुआ है, now what this will do, ये टिश्यूज में जहाँ से लीक हुआ है ना, यहाँ से ये ऐसे सिस्टम स्टार्ट होगा, है ना. Now these channels, these are called as lymphatic vessels. These will pick up this lymph. These will pick up this lymph and it will form greater lymphatic vessels, है ना, ऐसे करके lymphatic vessels बनाएगा आपका. And what it will do, it will go and drain in some vein of your body, है ना. जैसे ये यहाँ क्या है, यहाँ से तो आपका ऐसे कैपिलरीज है ना, ये तो आपका ऐसे वेन्स होगा, फिर यहाँ से ऐसे वेन में चला जाएगा, है ना. ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू आर्टरी, इट वेंट इनटू कैपिलरीज, नाउ इट वेंट इनटू वेन्स. ठीक है, लेकिन कुछ आपका प्लाज्मा लीक कर गया. सो जो प्लाज्मा आपका लीक कर गया विच इज नाउ लिम्फ, इट विल बी पिक्ड अप बाय दीज lymphatic vessels, and these lymphatic vessels will go and it will drain again into one of the veins of your body, right? It will go and drain into one of the veins of your body. तो वेन में ड्रेन हुआ तो क्या हुआ, जो भी आपका प्लाज्मा लीक आउट हुआ था ब्लड से, वो वापस से आपके ब्लड वेसल, लिम्फ वेन इज अ ब्लड वेसल, राइट, वो वापस से आपके ब्लड वेसल्स में ड्रेन हो गया. सो दिस इज हाउ योर लिम्फैटिक सिस्टम वर्क्स. ठीक है, तो आपको समझ में आया लिम्फ का फॉर्मेशन क्या होता है. लिम्फ इज नथिंग बट लीक्ड आउट प्लाज्मा, है ना. सो दिस इज how your lymphatic system looks and this is how your circulatory system looks, right? This is such a beautiful image. ठीक है, देखिए, है ना, जो ब्लू से दिखाया है आपको वो वेन्स है, जो रेड से दिखाया है आर्टरी है, एंड यहाँ पे जो ग्रीन से आपको दिखाया है दीज आर योर लिम्फैटिक वेसल्स, राइट. सो दीज लिम्फैटिक वेसल्स, है ना, ये कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, देखिए, बट दीज ब्लड वेसल्स दे ऑल आर क्लोज्ड, है ना. तो लिम्फैटिक सिस्टम आपका क्लोज नहीं होता, याद रखना. लिम्फैटिक सिस्टम इज ओपन, राइट, बट सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड ऑन द अदर हैंड, है ना. और भी डिफरेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में आपका देखेंगे. ठीक है, सो दिस विल पिक अप एंड फाइनली जा करके ये क्या करेगा, एक आपका ग्रेटर वेन में, है ना, ये जो वेन्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इनमें से इंफीरियर वेना कावा या किसी वेन में जाकर के ऐसे ड्रेन हो जाएगा लिम्फ. सो दिस इज हाउ द प्लाज्मा ऑफ ब्लड इज रिटर्न्ड टू ब्लड.
आई होप आपको समझ में आया. विद दिस वी कम ऑन टू एंड ऑफ दिस वीडियो. नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लिम्फ और ब्लड के बारे में डिफरेंस देखेंगे, है ना, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे, और फिर हार्ट एंड उसके चेम्बर्स पे आएंगे. ओके.